Hello, it's a very good evening to all. काफी important concept है जिसपे हम लोग अपना discussion करेंगे बच्चों आज. That is objectives. Multiple choice questions which are important from your examination point of view. Let's begin a discussion on very important objectives. Normally these all will going to be from past university question papers. जितने भी ऑब्जेक्टिव्स निकाले गए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर से निकाले गए ऑब्जेक्टिव्स है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस. इनकम अर्न्ड इन इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट. अगर कोई इनकम एक नॉन रेसिडेंट अर्न करता है दैट ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, अर्निंग प्लेस इज इन इंडिया. वी हैव लर्नड इन सेक्शन 5. हमने सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम किया था. देयर वी हैव लर्नड अबाउट दिस. इफ एनी इनकम इट इज अर्नड इन इंडिया, तो वो कोई भी हो, ROR हो, R बट NOR हो या नॉन रेसिडेंट हो, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. तो बच्चों इसका आंसर बनता है टैक्सेबल इन इंडिया. नेक्स्ट, नंबर 2, employer's contribution to recognized provident fund account of an employee for an in excess of prescribed limit is taxable as income from. Definitely employer employee relation है बेटा, तो ये इनकम टैक्सेबल होता है कौन से हेड में? सैलरी हेड. नंबर 3, reimbursement of employer, reimbursement by employer of the expenses incurred by employer's business. तो this is not taxable at all. reimbursement यानी किया हुआ खर्च वापस आप वसूल रहे हो, तो ये किसी भी हालात में टैक्सेबल नहीं होता है बच्चों. If the residential property acquired on 1st April 1970 is sold during the previous year 2019 and 20, its cost of acquisition is taken at a fair market value as on. यहां पर actually this topic relates with transfer of capital asset, gain or losses from transfer of capital assets. Recently, according to new amendment, जो इंडेक्सेशन नंबर स्टार्ट होता है ना, उसका डेट है 1 अप्रैल 2001. सो फेयर मार्केट वैल्यू जो कंसिडर किया जाएगा वो होगा एज ऑन 1 अप्रैल 2001 से. नंबर 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड. It should be received. It should be received. Income received on public provident fund. PPF का इंटरेस्ट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है बच्चों. PPF का इंटरेस्ट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है. सो टैक्स फ्री इन इंडिया, टैक्सेबल इनकम, नॉट एन इनकम. इनकम है बट इंडिया में वो क्या है? टैक्स फ्री है. नंबर 5, if a part of commercial property is let out and the balance part of property is retained by the owner for his business, then rent received will be, because you have part of the property is let out, so definitely the rent received will be taxable under the head income from house property. Standard deduction on family pension rupees 1,20,000 will be as per theory. अगर आप थियरी याद करोगे बच्चों, तो थियरी में कुछ ऐसा था, 1/3 और rupees 15,000, whichever is less. हमने थियरी में ऐसा पढ़ा था, 1/3 और 15,000 whichever is less. अब ये 1,20,000 का 1/3 कितना आएगा बेटा?
अगर आप इसका 1/3 निकालते हो तो इट कम्स 40,000 एंड what theory says 1/3 or 15,000 whichever is less. So if we compare 40,000 with 15,000 तो less amount है 15,000. So our answer will be rupees 15,000. Next, number 8. If an assessee invests rupees 70,000 in public provident fund, he is entitled to deduction under section 80C. 80C में maximum amount of deductions जो हमने पढ़े थे, that is rupees 1,50,000. But if your investment amount is less than 1,50,000, तो आपको पूरा अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा. कितने का इन्वेस्टमेंट किया आपने? 70,000 का. तो you will going to get deduction of rupees 70,000. Next, if Mr. Suresh, aged 62 years, pays medical premium rupees 25,000, he is entitled to deduction under 80D. आपको सेक्शन 80D याद आना चाहिए बच्चों. 80D में मैक्सिमम लिमिट फॉर अ सीनियर सिटीजन इज रुपीज 50,000, 50,000 ऐसा हमने पढ़ा है. बट आप जरा ध्यान से देखना, मेडिकल प्रीमियम कितना पे किया? 25,000. सो डिडक्शन विल गोइंग टू बी ऑफ रुपीज 25,000. क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. Mr. Arjun earns a saving bank interest of rupees 12,000 during the previous year 2019 and 20. He is entitled to deduction under section 80 TTA of rupees 12,000 or rupees 10,000 or nil. आप 80 TTA याद करो बच्चों. 80 TTA में हमने ऐसा पढ़ा है कि you can claim a maximum deduction of rupees 10,000. आपने कितना इंटरेस्ट कमाया? 12,000. तो 12,000 का डिडक्शन तो मिल नहीं सकता. मैक्सिमम लिमिट कितना है? 10,000. सो आंसर विल बी 10,000. इज इट क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं. फिर इनकम अर्न्ड बाय माइनर ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय फादर इज टैक्स इन द हैंड ऑफ. आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए. इनकम अर्न्ड बाय माइनर, इनकम कौन कमा रहा है? माइनर कमा रहा है. Actually, according to our Indian Constitution, minors are not eligible for filing returns and not also for paying any tax. But on other hand, ऐसा प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर कोई माइनर इनकम कमाता है तो पेरेंट्स के इनकम के साथ उसको क्लब कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और वो इनकम फादर के लिए टैक्सेबल होता है. तो करेक्ट आंसर is taxed in the hand of his father. Number 12, commission on sale received in addition to salary by a salesman is income from. अगर I am a salesman, मुझे सैलरी मिलती है और मुझे ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक्स्ट्रा बेच के दोगे तो कंपनी से आपको कमीशन मिलेगा. तो कंपनी से ही मिलेगा ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होगा ना. सो दैट अमाउंट विल ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली. क्लेम प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द मेडिकल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉई इज टैक्सेबल परक्यूसिट है, टैक्स फ्री परक्यूसिट है, नॉट अ परक्यूसिट है. एक बात ध्यान देना बच्चों, इसको परक्यूसिट ही नहीं माना जाता है. इट्स नॉट अ परक्यूसिट एट ऑल. ये परक्यूसिट ही नहीं है. Number 14, if the residential property held for 35 months, residential property एक tangible asset है. If it is held for 35 months, the resultant capital gain will be, वो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा या मीडियम टर्म होगा. तो आप थियरी याद करना बच्चों. कैपिटल गेन में हमने ऐसा पढ़ा है, इफ एनी टेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर पीरियड ऑफ 36 months और लेस देन दैट, उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है. तो ये 36 से कम है, सो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? शॉर्ट टर्म ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट, नंबर 15, गिफ्ट ऑफ रुपीज 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ. थियरी याद करना बच्चों. अगर गिफ्ट अपने रिलेटिव से मिलता है तो इट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल, उसको इनकम ही नहीं माना जाता है. बट इफ यू हैव रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड अदर देन रिलेटिव्स,
बाहर वालों से अगर गिफ्ट मिलता है तो इट इज 100% टैक्सेबल इफ इट्स वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000, ऐसा हमने थियरी में पढ़ा। अब ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं, सर 50,000 से ज्यादा कितना, 1,000, तो 1,000 टैक्सेबल करने को चले जाते हैं। ऐसा रूल नहीं है, 100% टैक्सेबल इफ इट्स वैल्यू एक्सीड्स 50,000। So answer will be 51,000. That's it. Clear है बच्चों, आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड, ध्यान देना, रेंट है बट हाउस प्रॉपर्टी का नहीं है बेटा, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। हमने थियरी में क्या पढ़ा है मालूम है, बिल्डिंग होना जरूरी है, 4 वॉल कवर्ड बाय रूफ, then only rent earned will be taxable under the head house property. But now since that rent is earned from open plot of land, so it will be taxable under the head other sources. है क्या other source option में? हाँ है बच्चों। So answer will be income from other sources. Number 17, standard deduction on family pension. Standard deduction on family pension of ₹1,50,000 will be, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी आया था ये, इसका 1/3 निकालो या 15,000। अगर मैं 1/3 निकालता हूं कितने अमाउंट का, 1,50,000 का, तो बच्चों अमाउंट आएगा 50,000। बट if I compare this 50,000 with 15,000 and you're saying that whichever is less is our answer, तो मुझे बताओ इसमें क्या आंसर बन सकता है बच्चों? 50,000 तो लेस अमाउंट नहीं है, 15,000 is the least amount, so answer will be 15,000. Next, number 18. If an assessee paid a life insurance premium of ₹90,000, he is entitled to a deduction under section 80C. तो आपको क्या याद आना चाहिए, 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना है? याद करो बच्चों, 80C का मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000, बट हाउ मच प्रीमियम ही पेड? He paid only 90,000. तो डेफिनेटली डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ₹90,000, 90 से ज्यादा नहीं मिलेगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ₹90,000. नंबर 19, Mr. Anil is a person with disability, physical disability of 50%. He is entitled to a deduction under section 80U. 80U क्या बोलता है मालूम है? आप कितना खर्च किए वो मत देखो, डिडक्शन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट इज ₹75,000। थियरी बोल रहा हूं मैं आपको। अगर सीवियर केस रहा, सीवियर केस का मतलब होता है इफ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इज 80% और मोर, देन इन दैट केस डिडक्शन अमाउंट विल बी 1,25,000। अब 1,25,000 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसा भी समझ में आ जाता है बच्चों को। तो बेटा 50% यानी आपको कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा? 75,000 का। Clear? Fixed amount 75,000 irrespective of expenses incurred. Next, number 20. Mr. Dinkar earns a saving bank interest ₹90,000 during the previous year 19 and 20. He is entitled to deduction under section 80 TTA. आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना कमाए हो? आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना कमाया? 90,000। तो 80 TTA में आपको कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा? ऑप्शंस आर 90,000 पूरा, 10,000 या नील। तो आंसर है सर 80 TTA का मैक्सिमम लिमिट ही आपने हमको कितना पढ़ाया? 10,000। सो आंसर विल बी ₹10,000। क्लियर?